حافظ گل بہادر گروپ جو ہے انہوں نے پاکستان کی فوج پہ آج حملہ کیا اور یہ سوئسائڈ حملہ تھا جس کی وجہ سے 16 پاکستانی فوجی جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی۔ اور یہ تحریک طالبان ہو یا حافظ گل بہادر ہو یہ مصروف تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ مصروف ہے، انڈیا سے لڑ رہی تھی۔ آج پاکستانی آرمی کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ حملہ خیبر پختونخوا کے ایک ڈسٹرکٹ شمالی وزیرستان میں ہوتا ہے۔ جب آرمی کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں یا آرمی کا کانوائے گزرتا ہے تو خودکش حملہ آور جو ہے وہ وہاں پر بلاسٹ کرتا ہے۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولے لال۔ میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، سندھ میں سندھی کے ساتھ ساتھ سرائکی زبان بھی پیرالل چلتی ہے، کئی لوگ بولتے ہیں، بلوچ لوگ تو خاص طور پر۔ سرائکی کی ایک کہاوت ہے، بلی شیر پڑھایا پھر شیر بلی نو کھاون آیا۔ یہ جو کہاوت ہے نا، پاکستانی فوج اس کی ISI اس کے اوپر 100% فٹ بیٹھتی ہے۔ 1980 میں پاکستان نے طالبان بنائے تھے دہشت گرد۔ امریکہ سے ڈالر لے کے جنرل ضیاء الحق نے مدرسے کھولے اور پٹھانوں کو خاص طور پر، ویسے تو اس میں سب شامل ہیں، پنجابی بھی ہیں، زیادہ پنجابی اور پٹھان ہیں، ان کو ملٹری ٹریننگ دی اور دہشت گردی کی وارداتیں کرنے کے لیے افغانستان بھیجتے رہے۔ آج وہی طالبان پاکستانی سرکار، پاکستانی فوج کے دشمن بن گئے ہیں۔ کل KP کے کہتے ہیں سرحد، ہم پہلے ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، آج کل اسے خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے۔ اس کا جو ایک علاقہ ہے وزیرستان، اس کا جو شمال ہے، نارتھ ہے، وہاں سے آرمی کی بامب ڈسپوزل اسکواڈ کی ایک مائن سویپنگ گاڑی جا رہی تھی۔ آپ سوچئے، اسپیسیفکلی میڈ ہوتی ہیں یہ، اور یہ بڑے بڑے دھماکوں سے نہیں اڑتی، کیونکہ یہ تو خود جو ہے سرنگوں کو ڈھونڈتی ہے اور انہیں ہٹاتی ہے یہ گاڑی۔ اور اس میں جو لوگ سوار تھے سپاہی، وہ خود بام ڈسپوزل اسکواڈ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا راستے میں طالبان کے ایک فدائی حقیقت میں تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ سمجھ لیجئے، جو سوسائڈ بامبر ہوتے ہیں نا، اسی کو فدائی کہتے ہیں۔ وہ فدائی نے ایک کار تھی جو کہ پوری دھماکے دار مادے سے بھری ہوئی تھی، اس کو آ کے ان سے ٹکرایا، وہ گاڑی سے، جو آرمی کی گاڑی تھی، بام ڈسپوزل اسکواڈ والوں سے، بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ 14 لوگ ہلاک ہو گئے اور 24 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اب اس واقعے کی ذمہ داری طالبان نے لے لی ہے۔ طالبان میں بھی کئی فرقے ہیں، گروپ بندی ہے یا فیکشنز ہیں کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس میں ایک فیکشن ہے حافظ گل بہادر کا، ان کے جو سردار ہوتے ہیں اسی کے نام پہ پہچانے جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان گروپ، اس طرح، تو یا مسلم لیگ نواز شریف گروپ، تو اس طرح یہ جو ہے حافظ گل بہادر گروپ تھا TTP کا، جنہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ لیکن آپ کو تو علم ہے کہ پاکستانی سرکار کو جب کچھ بھی نہیں سوجھتا تو وہ ہر واقعے کی ذمہ داری بھارت کے اوپر مڑ دیتے ہیں۔
भले ही भारत का उससे कोसों दूर तक कोई वास्ता न हो, लेकिन ये नहीं मानते। हर बात में उन्हें भारत की साजिश दिखाई देती है। तो कल भी पाकिस्तानी सरकार ने तो इसकी जिम्मेदारी भी भारत पे डाल दी, बावजूद इसके कि वो हाफिज बहादुर गुल बहादुर जो है ग्रुप, वो खुद मानते हैं कि हमने ये वाकया सरअंजाम दिया है। 16 के करीब जो है आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? वर्दी वाले जो इस मुल्क के मुहाफिज है उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? और इसका जो क्लेम है दहशतगर्दी का, हाफिज गुल मोहम्मद की एक जमात है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसने क्लेम किया है कि दहशतगर्दी हमने की है। कभी हम टीटीपी से लड़ते नजर आते हैं, तो कभी हम कश्मीर के साइड पे जंग कर रहे हैं, तो कभी हम बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है, तो कभी हम ईरान की तरफ भागते हैं। हर तरफ से हमें इतने चैलेंजेस क्यों हैं? और हर फोरम पे जो इंडिया बोलता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान में है कि दहशतगर्द जो है हमें इंटरनली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्सटर्नली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आर्मी के ऊपर इतना बड़ा हमला, अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमला हुआ है पाक आर्मी के ऊपर। दहशतगर्दों का क्या एम है? वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। और इन लोगों को फंडिंग कौन करता है और ये लोग रहते कहाँ हैं और इनको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से डिलीवर होती है? इन सब राजों से आज पर्दा उठाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहे, पब्लिक की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन। अब ये देखें ना, मतलब आपने जैसा खुद ही जिक्र किया है कि हम कभी अफगानिस्तान के पास जाते हैं, कभी इंडिया के पास जाते हैं, कभी ईरान के पास जाते हैं कि हमारे आपकी ज़मीन से हमारे दहशतगर्दी हो रही है। अब ये देखें जो हमारे अपने लोग नाराज़ हैं हमसे, हम उनसे क्यों नहीं बात करते? अब ये देखें दहशतगर्दी क्यों होती है? जब हम किसी ख़ास इलाके के, जैसा कि वज़ीरिस्तान होगी, हम अगर उन लोगों के पास बैठ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनसे बैठ के मसला हल कर लेते हैं, तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो सियासी इशू है ना, जो वहाँ के MNAs अपनी पार्लियामेंट्स में डिस्कस करें ना, वो करें ना, यही तो बात। अब ये देखें सिक्योरिटी फोर्सेज है हमारी जितनी, अब वो देखें कभी उन पर कहीं हमला हो रहा होता, कभी हमारे हर ऑलमोस्ट अगर एवरेज निकालें तो हमारे 2-3 सिपाही हर रोज़ शहीद हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। अब ये देख, ये इससे कहते हैं सिक्योर, हमारे जितने नौजवान शहीद हो रहे हैं, जितने आर्मी के हैं, नए को सूबेदार, ये वो सारा कुछ। अब हमें एक बार बैठ के सब सियासतदानों को और हमारे जितने मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है या दूसरी इंतज़ामिया वगैरह होती है, हमें बैठ के ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये इनकी मेन वजह क्या है। दोस्तों, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज़ गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए, समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती, तो ज़ाहिर बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि वो पाकिस्तानी फौज के दुश्मन हो गए, जबकि वो उन्हीं के बनाए हुए हैं, ये भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कई किस्में हैं इस्लाम की, यानी किसी को शायद ये इसके ऊपर यकीन ना आए, लेकिन ये हकीकत है। हर मुल्क का अपना अपना इस्लाम है और वो लोग इतने कट्टर होते हैं कि हर मुसलमान कहता है कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, सामने वाला जो है वो काफिर है और उसको मारना मेरा फर्ज बनता है।
आपको पाकिस्तान का इस्लाम अलग दिखाई देगा, ईरान का अलग, सऊदी अरेबिया का अलग, और तुर्की का इस्लाम तो यूरोप वाला इस्लाम है कि मिनी स्कर्ट पहन के लड़कियां घूमेंगी और फिर भी वो कहेंगे ये हम इस्लामी निज़ाम चला रहे हैं। और इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया का इस्लाम अपने तरह का है जो है, और इसके लिए ये सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो जाते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, जो पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तानी सरकार जो है वो सही तौर पर इस्लामी निज़ाम नहीं चला रही, और कैसे चलाना चाहिए इसके लिए वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की सरकार पर काबिज हो जाएं, ताकि वो अपनी पसंद का इस्लाम जो है उसके ऊपर पाकिस्तान में अमल दरामद करा सके। लेकिन ये जो उनका स्कोर्ज है, जिसकी वजह से आए दिन बेगुनाह लोगों का कत्ल होता रहता है, इसके बारे में पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनका क्या कहना है आप खुद सुन लीजिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।